हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर वोकैब। वोकैब बिल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस को लेके अटेंड करें तो भी आपके लिए वोकैब बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी कांट एक्सप्रेस एवरीथिंग बाय स्पीकिंग ऑल द टाइम होल सेंटेंस। कभी कभी एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे सेंटेंस का बयां कर देता है। सो दैट इज़ योर वोकैब। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ मीन्स व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ किसी चीज पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं एपेक्स, पिनाकल, टॉप, क्लाइमेक्स। ये जेनिथ आपके, जैसे अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करता है तो उसको रेफर करते हैं ही इज़ एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही इज़ एट द जेनिथ ऑफ द माउंटेन, ही इज़ एट द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म शूटिंग। तो किसी चीज़ के आप जब लास्ट तक पहुंच जाएं या टॉप तक पहुंच जाएं तो वो आपका जेनिथ हो जाएगा। किसी बिजनेस पोजीशन जो आपके होते हैं उस टाइप के किसी टॉप एम्प्लॉय पोजीशन होता है तो भी हम लोग रेफर कर सकते हैं जेनिथ। अब एक और अच्छा वर्ड बताती हूँ, क्लाइमेक्स। आपने बहुत बार सुना होगा, किसी फिल्म का सुना होगा, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म। अब अगर हम बात करें, क्लाइमेक्स मीन्स द लास्ट पॉइंट। इसका ऑपोजिट हो जाता है आपका एंटी क्लाइमेक्स, जो आपने टीजीटी में सुना होगा, या फिर एक कॉमन वर्ड जिसका मतलब हो जाता है द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स क्लाइमेक्स इज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस, एंड एंटी क्लाइमेक्स रिफर्स द डाउनफॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, melancholy. Melancholy. We have come across the melancholy voice, the melancholy song. So it can be sad, depressed, dejected, or it can be mournful also. Next one, erroneous. This is the erroneous task done by you. Means it can be wrong, means having, it is wrong, it has mistake. It can be false also, untrue also, or it can be invalid, which is not required as per the choice or as per the scene. Now very important word, that is obsolete, which is very commonly asked in most of the exams, right from SSC, banking, TGT, even PGT also. Obsolete means which is no more existing, extinct, discarded, outworn, of no more usage. Or we can say we can say that it can become sometimes as antiquated also. So like this you have to prepare for your vocab.
Next word very commonly asked is nefarious. Nefarious means when we have the word famous. Famous is for positivity, fame, everything. But nefarious is famous for the wrong things, evil deeds, bad things, unlawful things which are against your law, or we can say shameful things also. We can have one more word, that is your withhold. Very commonly asked nowadays. Withhold means to stop something, refrain, hold back. We can say ना कि इसको चीज को रोक दो, suppress. So these are the words, these are the vocabs that we have gone through today. Let's have the proper understanding of all the vocabs. Again, zenith refers to the top, किसी चीज के top में. He has reached to the zenith of this particular place, means the top of this place. So it can be, your synonyms can be apex, pinnacle, top, climax. Next one is your melancholy. जब बहुत ज़्यादा कोई उदास होके काम करता है, चाहे उसका काम हो, चाहे उसका सॉन्ग हो, चाहे कुछ भी हो. So she was singing a melancholy song, means the song was melancholy by nature, means very sad. वो बहुत ही ज़्यादा sad song था, depressed था, और हो सकता है उसको लोग like भी ना करें तो dejected भी हो जाए. और mournful means उसको सुन के बहुत ज़्यादा ही उदासीन हो जाए. Nefarious, famous is for very good things, positive things. Nefarious is also famous, one who is known but for bad things. It can be evil things, bad deeds which is not acceptable by law, that is unlawful and shameful. Next we have erroneous. Erroneous, time and again human beings are tend to commit errors. एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स की एरर्स कमिट करने के लिए. नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ. टाइम एंड अगेन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन आवर पास्ट. सो एरोनियस मीन्स रॉन्ग, मिस्टेक, फॉल्स, अनट्रू, इनवैलिड, जो उस समय एक्सेप्टेबल नहीं थी या नहीं है, दैट इज योर एरोनियस. ऑब्सोलीट, वेरी कॉमनली आस्क्ड. एक्सटिंक्ट, जो अभी आपके वर्तमान में नहीं है, जो आपके वर्तमान में चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो आपके यूसेज की नहीं है, दैट इज एक्सटिंक्ट. डिस्कार्डेड, आउटवर्न, ऑफ नो मोर यूसेज एंड एंटिक्वेटेड. नेक्स्ट वी हैव विदहोल्ड, किसी चीज़ को स्टॉप करना. आई वॉज विद होल्डिंग माई एंगर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू में रखी. आई वॉज सप्रेसिंग माई एंगर, आई वॉज विद होल्डिंग माई एंगर. सो टू स्टॉप, रिफ्रेन, होल्ड बैक. यू शुड होल्ड बैक योर पोजिशन. तो होल्ड बैक मीन्स आप उसको विद होल्ड करिए, स्टॉप करिए, सप्रेस. सो थैंक यू फॉर टुडे. These are the important vocabs which are being asked in case of your exam.